नमस्कार, मैं हूँ हिताशा और आज हम मौजूद हैं 10th ग्लोबल स्पाइस समिट में, जो कि हो रहा है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है एनएनएस मीडिया ग्रुप ने। Very good morning to all of you, respected Shri Rajesh Gupta sir, and all the distributors from the industry and the marketing. Hamdard was established in 1906, and it was always a strive to serve for the humanity. We are focused on the best services and best quality product providing to the masses. Hamdard was established by Hakim Hafiz Abdul Majid Saab in a quest to revive ancient sites of Unani medicine. And after the continual improvement and the gradual path of the improvements, we started our Manesar factory in 2002. This is a very state-of-art facility who is providing ISO 22000, where we are focusing for the quality and the quality management system. We started our journey with the beverages and the medicine, and through the continual improvements in 2022, in 2015, the Manesar unit is successfully inspected by the USFDA for the beverages for Sharbat Ruh Afza, and then after we have accredited a lot of quality certifications. We have the Halal certificates, EIA certificates, and many more. For the spice journey, we have started our back integration because the quality is the main concerns for the input materials of the spices. This is the big challenge. Then we have started our integration to grow the spices at our own land. At the Aurangabad facility, we have the 350 acres of land, and where we are growing a variety of spices as our own to ensure the quality of the input material. And here is a representation how we are dealing with the spices. It start from the growing to the up to the last for the preservation of the quality of our products. Apart from the Aurangabad facility, in other areas of the country also, we have started acquiring lands. Spice manufacturing is based at the Hamedar, at our Manesar plant. We have started our journey in September 2022. There is a complete your manufacturing process and the packing facility over there. The capacity of spices is 4 tons in 8 hours. We have the dedicated 3 lines are there for the manufacturing. Okay. मानेसर प्लांट में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 लाइनें हैं, और ये हमने विशेष रूप से एक लाइन हमने डेडिकेट की हुई है टर्मरिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
एक लाइन हमने डेडिकेट किया हुआ है आपके ब्लेंडेड स्पाइसेस और होल स्पाइसेस के लिए, और एक लाइन टोटली डेडिकेटेड है आपके चिली लाइन के लिए, जिसमें हर एक लाइन की जो कैपेसिटी है वो 500 kg पर आवर की है, 500 kg पर आवर। फॉर द स्पाइस प्रोसेस लाइन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास विशेष रूप से इसके क्वालिटी पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमने यहाँ पे लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग और क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग की भी सुविधा हमारे पास है, जिससे कि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारे स्पाइसेस की क्वालिटी है वो ग्राइंडिंग के समय में कोई भी इसमें उसका कोई भी लॉस ना हो। जैसे हमारा उसके एरोमा है, उसके आपके वोलेटाइल ऑयल्स हैं, इन सब का कोई भी लॉस ना हो। इसके लिए हमारे पास क्रायोजेनिक के लिए ग्राइंडिंग लाइन्स हैं, लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग है चिली लाइन्स के लिए, लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग है टर्मरिक लाइन्स के लिए। दिस इज द प्रोसेस, किस तरीके से हम अपने स्पाइस की मैन्युफैक्चरिंग को निर्धारित करते हैं, चलाते हैं, जिसमें कि हमारे पास स्टेप 1 पे हमारी क्लीनिंग के सारे प्रोसेसेस हैं, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि ग्राइंडिंग से पहले जो भी हमारे पास इनपुट मटेरियल आता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंटामिनेशन न रहे। उसके पश्चात हम उसको ग्राइंडिंग स्टेज पे लेके जाते हैं। ग्राइंडिंग स्टेज में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राइंडिंग स्पेस पे अगर हम टर्मरिक के लिए जा रहे हैं तो लो हीट टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग में हम इसको इनपुट आपका जो टेम्परेचर है लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटपुट टेम्परेचर भी हम मेंटेन करते हैं 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जो भी उसमें मॉइस्चर लॉस होना है या हमारा कोई भी वोलेटाइल ऑयल्स का है, वो सारे लॉसेस को हम वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, मेनली उसके एरोमा एंड टेस्ट को। थर्ड स्टेज पे हमारी शिफ्टिंग होती है। जो भी ग्राइंडेड स्पाइसेस हमारे आगे अगले चरण में जाते हैं, वहां पे हम उसको जो भी हमारा स्पाइस है उसके अनुसार शिफ्टिंग में हम अलग अलग तरीके के सीव्स लगा करके हम उसको छानते हैं, और छानने के बाद कन्वेयर सिस्टम के थ्रू फिर ब्लेंडिंग में जाता है। ब्लेंडिंग में हम जा करके उसको एक तरीके से पहले मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद कन्वेयर सिस्टम के थ्रू हम उसको पैकिंग हॉल के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना कि हमारे पास ये इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल की ये सारी सुविधाएं हैं, जिसमें कि जब हम अपने किसी भी इनपुट मटेरियल को, मसाले को बाजार से लेते हैं, उस समय हम पहले उसकी क्वालिटी का परीक्षण करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, और क्वालिटी को चेक करने के बाद जो हमारे स्पेसिफिक पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं उन क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही हमको ये प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें उपलब्ध कराई जाती है। ये एक सीड लाइन है, जहाँ सीड लाइन में अब आपको विस्तार के ऊपर एक एलॉबरेट तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी ग्राइंडिंग लाइन को या प्रोसेस लाइन को, मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स को हम लोग चलाते हैं। देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमारी फीडिंग होती है स्पाइसेस की, और ये पूरा प्रोसेस जो है सेकेंड स्टेज पे हमारे पास यहाँ पे आता है, जहाँ पे डी स्टोनर लगा होता है, जहाँ पे हम कोई भी अगर इसमें कोई ऐसा पार्टिकुलेट मटेरियल है, स्टोन्स हैं या कोई और भी कंटामिनेशन है, वो यहाँ पर हम लोग दूर करते हैं। उसके बाद 4 स्टेज क्लीनिंग का प्रोसेस है हमारे पास, जिसमें 4 स्टेज क्लीनिंग में पहला स्टेज आपका हो गया जहाँ डी स्टोनर है, उसके बाद आपके इसके जो भी आपके मड पार्टिकल्स होंगे या आपके अंदर कोई भी सॉयल होगा, वो सारे के सारे हम शिफ्टिंग और उसके शिफ्टर्स होते हैं, वहाँ पे उसको निकाल लेते हैं। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक रोलर्स भी लगे होते हैं, जो स्टैटिक रोलर्स अगर कोई हेयर पार्टिकल आ गया या कोई और पार्टिकुलेट मैटर्स आ गया, जो चार्ज पार्टिकल्स आ गए, उसको हम वहाँ से दूर करते हैं। और ये करने के बाद हम क्लीन स्पाइस को कलेक्ट करते हैं। इस 4th स्टेज पे क्या है, अगर आपको होल स्पाइस के लिए जाना है तो दिस इज द कलेक्शन पॉइंट। यहाँ पर हम अपने होल स्पाइसेस के लिए क्लीनिंग के बाद हम
कलेक्ट कर लेते हैं अपने बैग्स में, और वो बैग्स में कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हमारा वो पैकिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। अब ये जब क्लीनिंग हो जाती है, क्लीनिंग के बाद भी हमारा ऑनलाइन क्वालिटी चेक्स होते हैं, ऑनलाइन हमारे क्वालिटी के पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, वहाँ से सैम्पलिंग होती है, और सैम्पलिंग होने के बाद वो जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल से इसको अप्रूव कर देते हैं, नाउ स्पाइस इज रेडी फॉर द फर्दर स्टेप, देन वी मूव फॉर द फर्दर स्टेप फॉर पैकिंग। अगर वो होल स्पाइस नहीं है और ये हमारा ब्लेंडेड स्पाइस है या हमारा उसमें पाउडर स्पाइस है, देन अगले चरण पे जाता है जहाँ पे हम इसकी सीजनिंग फर्स्ट मिल के अंदर जाते हैं, और फर्स्ट मिल में हम इसकी ग्राइंडिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस फर्स्ट मिल में भी हमारा लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग होती है, जिसमें हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, और हीट एक्सचेंजर्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा इनपुट टेम्परेचर है वो लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आउटपुट पे इंश्योर हम करते हैं कि 12 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर न रखा जाए, न हो। इसके बाद ये जब हमारी ग्राइंडिंग हो जाती है, ग्राइंडिंग होने के बाद ये हमारा क्रायोजेनिक क्रिस्क्रू में जाता है। तो ये दिस इज द ट्रू स्टेप ग्राइंडिंग। फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो उसमें लो टेम्परेचर हीट ग्राइंडिंग है, एंड सेकंड स्टेज में हमारा क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग में हम क्या है, वी आर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन एट द -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें भी हमारा जो भी आपके अब यहाँ से सीजनिंग कट स्पाइसेस हैं, कन्वेयर के थ्रू व्हेन इट इज गोइंग द कंप्लीट मास इन द फाइनल ग्राइंडर, उसके पहले हम उसकी ब्लैंकेटिंग करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन से, सो दैट कि ग्राइंडिंग करते समय जो भी इसका टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो या जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होकर के टेम्परेचर निकले, वो उसका इम्पैक्ट आपके स्पाइस पे न पड़े, जिससे कि आप इसके जो भी वोलेटाइल ऑयल्स हैं और इसके जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, एरोमा को प्रिजर्व करते हैं। माँ की ममता कुछ ऐसे ही है ये हमदर्द खालिस मसाले, जिसमें हमने बड़ी बारीकी से चुन चुन कर सच्चाई डाली है और बड़ी तसल्ली से इन्हें तैयार किया है। ये खालिस जब आपकी रसोई में आए तो फौरन आपके दिल में उतर जाए। कभी लाल मिर्च बन स्वाद का तड़का, तो कभी जीरा बन झोंक का झटका, कभी धनिया बन आपकी दुनिया में खुशबू फैला दे, तो कभी हल्दी बन रंग निखार दे। हमदर्द के खालिस मसाले खालिस हैं तभी तो खास हैं। एनएनएस मीडिया ग्रुप द्वारा 10वें ग्लोबल स्पाइस समिट का सफल आयोजन 26 मई 2023 को किया गया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में आयोजित इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राजस्थान सरकार के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी एवं राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र सैनी ने किया।